Hi everyone who are both available or joined in from the Hangouts as well as who are listening to me live on LinkedIn. We are doing a webinar on how you can generate leads for your software business. We will be starting up the webinar in another 1 or 2 minutes, but if you guys can hear me over LinkedIn, then do let me know over the comment section. That will really help me understand whether all is okay, and then we can start it up. Thank you, Roshan. Thanks for letting me know. So we will be starting up the webinar in another minute, and the webinar will focus more on understanding how we can generate leads for a software business, essentially for a software service business. But obviously, the same approach can be applied to a software product business as well. And we are going to do this webinar on as a live session on LinkedIn, as well as in parallel to it, we have an amazing audience who have joined in on the Hangouts. So they're also listening to it, and it's going to be more of a personal engagement over Hangouts. So next time, if you want to join the webinar on Hangouts, then don't miss out on the post that I keep on doing regularly on LinkedIn. So thank you for joining in. Whoever has joined me for this session on webinar on a lead generation for software business, and whoever is on Hangouts as well as on LinkedIn, I'll explain the structure on how this webinar is going to be. So first, we are going to do around 30 minutes of session of understanding how the entire lead generation process workflow goes on. And after that, we'll basically have someone in the audience, share their experiences on how they do their business, and maybe we can, help them as a live case study. And then we can take up some questions from the audience, both on the LinkedIn Live as well as people who have joined me on the webinar on the Hangout session. I hope that's okay and works for everyone. Awesome, great. Thanks. Thanks for letting me know. So I'm sharing my screen, um, both on Hangouts as well as on LinkedIn Live, and I'm going to start the webinar on understanding how we can create and a system for generating leads for software business. uh, तो मैं थोड़ा सा इसको और नॉर्मल भाषा में बात करना चाहूंगा अभी. I had done a podcast few days back, and a lot of people told me कि आपने जब हिंदी में बात की ना तो हमें बहुत अच्छा लगा. So मैं उसी तरीके से अब बात करना चाहूंगा, so that we have a deep connect between each other. तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, होपफुली. किसी को कुछ इशू है तो जस्ट डू लेट मी नो एंड आई स्विच टू इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स. बट अभी के लिए इफ everyone is comfortable with that, then I'll keep it to more towards Hindi, so that more people, maybe the audience who are from a different part of the country, are not very receptive in English, then they are also comfortable in Hindi, or vice versa. ठीक है, तो let's start. So the major problem with software service business or software product business essentially is that the barrier to entry is very less. मतलब कोई भी बड़ी आसानी से एक डिफेंसिबिलिटी की अगर हम बात करें, मार्केट की बात करें, तो मतलब बहुत इजी हो जाता है कभी कभी कि एक सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना. आई एम नॉट सेइंग कि सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस रन करना बहुत आसान काम है, मैं वो नहीं बोल रहा, बट मैं बोल रहा हूँ एंट्री लेना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता. यू डोंट नीड अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मशीनरी टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर बिजनेस. बेसिकली आपको बस एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और ऑब्वियसली स्किल सेट तो बहुत जरूरी है. अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, बट हाँ, मतलब मेजर कॉर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता एक सॉफ्टवेयर बिजनेस रन करने के लिए, इनिशियली एटलीस्ट. तो इसलिए ना बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वहीं पे हमारा जो मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो बहुत बढ़ जाता है. और
तब जाके हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल्स करने की, कि कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें कि हम अपनी सेल्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और टू से द लीस्ट हम अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करें कि बाकी लोग जो भी इस बिजनेस में है, इस इंडस्ट्री में है, वो भी सेम चीज कर रहे हैं मोर और लेस। तो सर्विस बिजनेस के अंदर ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि पहला तो आइडेंटिफाइंग द राइट कस्टमर्स, कि हम कैसे रीच आउट करें, कैसे डिफरेंशिएट करें अपने प्रोसेस को, और दूसरा हम अपने आप को पोजीशन कैसे करें कि लोगों को समझ में आए कि हम डेफिनेटली अलग हैं बाकी। दो चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे। फर्स्ट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ टू टारगेट, उस प्रोसेस को कैसे हम यूनिक कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट हमारा जो बाकियों के कंपैरिजन में एक प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट, एंड वी हैव एन एज ओवर देम इन क्लोजिंग एंड फाइंडिंग द राइट बिजनेसेस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मुझे जो अप्रोच बहुत पसंद है, जिसको मैं भी रिलीजियसली फॉलो करता हूँ इंटरनली, इज इंटेंट सिग्नल्स। इंटेंट का क्या मतलब होता है कि एक, अब मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब मेरा एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है, लेट्स से मैं आपको एक वेब डेवलपमेंट, मेरी एजेंसी है, और मैं कोडिंग करता हूँ, और मैं आपकी वेबसाइट्स बना सकता हूँ और मोबाइल ऐप बना सकता हूँ। बट ऐसे और भी बहुत लोग हैं, वो भी सेम ही चीज कर रहे हैं, और वो भी सेम टाइप के बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं एसएमईज को टारगेट करता हूँ, या मैं एक छोटी कंपनीज को टारगेट करता हूँ, तो मेरे जैसे ऑडियंस को और भी लोग टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने मान लीजिए लिंक्डइन पे एक फिल्टर लगाया कि कंपनीज दैट हैव एम्प्लॉय साइज ऑफ 1 to 50, लेट्स से ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब उसके अंदर एसेंशियली जो डिसीजन मेकर होते हैं छोटी कंपनीज के अंदर, वो डायरेक्टर्स और फाउंडर्स और सीईओज होते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनीज में जैसे जैसे आप, एक कंपनी का साइज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल, वीपी लेवल के लोग आने शुरू हो जाते हैं। पर छोटी कंपनीज में मोस्टली जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो फाउंडर्स और सीईओज होते हैं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि सारे लोग इन फाउंडर्स एंड सीईओ को टारगेट कर रहे हैं। अब आप 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो, या कॉल कर रहे हो, या ईमेल कर रहे हो, ऐसी और भी बहुत सारे लोग इनको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट गेट अ रिवर्ट और रिप्लाई ऑन ईमेल और रिवर्ट ऑन लिंक्डइन मैसेज। तो इस चीज को कैसे आप एड्रेस करते हो? इस चीज को हम लोग एड्रेस करते हैं बाय टाइमिंग ऑफ द मैसेज। हाउ वी कैन पर्सनलाइज आवर अप्रोच इन सच वे कि हम लोग राइट टाइम पे रीच आउट कर पाए, इन पर्टिकुलर फाउंडर्स और सीईओज को अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम ऑफ 1 to 50 साइज। ऑब्वियसली बाकी साइज में भी ये अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो, बट अभी के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं, लेट्स से छोटी कंपनीज को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंटेंट सिग्नल मतलब एक ट्रिगर हमें कैसे मिले कि हमें पता लग जाए कि यार इस कंपनी में अगर मैं इस टाइम पे रीच आउट करूं तो ज्यादा चांसेस हैं रिप्लाई आने के, ज्यादा चांसेस हैं एक एंगेजमेंट होने के, या डिस्कशन फर्दर लेके जाने के। तो ऐसे में इंटेंट सिग्नल बोलता हूँ कि मतलब इस टाइम पे एक इंटेंट है उस कंपनी का कुछ करने का। तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरी इंटेंशन क्या है, वैसे ही इंटेंट सिग्नल ये बताता है कि कंपनी की इंटेंशन या उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो मैं उसको इंटेंट सिग्नल बोलता हूँ कि उस टाइम पे इंटेंशन क्या हो सकती है उस कंपनी की, बिजनेस उसको करना है, ग्रो करना है, किस पाथ पे है वो कंपनी। ऐसे बहुत सारे ना कंपनी के एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड समझने की कोशिश करोगे उस कंपनी की, तो आपको समझ में आएगा कि ये राइट टाइम है या नहीं है उस कंपनी को रीच आउट करने का। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज, अगर कोई कंपनी, बहुत सारे आप न्यूज़ देखते होंगे योर स्टोरी पे, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स पे, कि इस कंपनी ने आज फंडिंग रेज कर ली। तो दिस इज वन ऑफ देयर स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बिजनेस और इंटेंशन, कि अभी मैंने आज, कंपनी ने आज मेरी फंडिंग रेज की है, तो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि मेरी कंपनी अब इन्वेस्टमेंट करने वाली है बहुत सारे ऑप्शंस में। मतलब पहला इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली मैं करूंगा टीम ग्रो करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज फंड्स, एटलीस्ट 20-30% ऑफ देयर फंड्स फॉर हायरिंग। तो जैसे ही किसी कंपनी ने फंडिंग रेज की, आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है to reach out to them, identify those companies at that instant and to reach out to them कि क्या आपको इस टाइम पे किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो आपका कन्वर्जन उन कंपनीज में काफी हाई होने वाला है, बिकॉज एक तो उनके पास बजट आ गया, उनके पास अभी अभी पैसा आया है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू डू इज इन्वेस्ट दैट मनी। दूसरा, उस कंपनी के पास अब एक क्लियर ऑब्जेक्टिव आ गया
कि उनको ग्रो करना ही है, बिकॉज दे हैव रेज्ड मनी, उनको भी आगे नंबर्स शो करने होते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, आगे उनको फर्दर फंड रेज करना है, नेक्स्ट राउंड रेज करना है, तो उनको ग्रोथ तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। तो उस ग्रो करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करनी है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो जैसे इस स्टेज पे ना बहुत सारे बिजनेसेस जो फंडिंग रेज करते हैं वो इन हाउस के साथ साथ एक एक्सटर्नल एजेंसी जरूर हायर करते हैं फॉर कंसल्टिंग एंड ऑब्वियसली स्केलिंग देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। स्पेशली अगर वो इंटरनेट स्पेस में है, अगर उनका एक प्रोडक्ट है, तो वो डेफिनेटली चांस होते हैं कि वो हायर करती हैं फॉर आउटसोर्सिंग देयर वर्क। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, अब मुझे मेरा टारगेट सेट हो गया कि मुझे अगले 3 महीने में इस प्रोडक्ट के अंदर ये मॉड्यूल्स को प्लान करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो एक दो मॉड्यूल्स को आउटसोर्स कर देते हैं एजेंसीज को, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज को। तो अगर आप इस स्टेज पे उन कंपनीज को रीच आउट करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छी लीड और अच्छी बिजनेस मिलने के बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेम दूसरा सिग्नल जो मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैंने खूब ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके अंदर, वो है हायरिंग। जैसे मैं अपने केस में बताता हूँ, मेरा बिजनेस है, एक प्रोडक्ट है जो कॉन्टैक्ट डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स के। तो हमारे आइडियल कस्टमर्स कौन हुए? हमारे आइडियल कस्टमर्स हुए सेल्स मार्केटिंग के लोग। बट मैं सारे सेल्स मार्केटिंग के लोगों को सब टाइम नहीं रीच कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैक करता हूँ कि कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट सेल्स के लिए लोगों को हायर कर रही है या B2B सेल्स के लिए लोगों को हायर कर रही है। अगर वो कंपनी उस टाइम पे उस स्टेज पे उन लोगों को हायर कर रही है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट है अपनी B2B सेल्स को स्केल करने की। तो अगर मैं उस स्टेज पे उनको रीच करूं, तो उनको एक सेल्स पर्सन के साथ साथ एक प्रोडक्ट की भी डेफिनेटली मोर और लेस जरूरत पड़ती है, जिसको वो यूज करके अपने सेल्स टीम को अपना अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सके। कौन सा आप apply कर सकते हो अपने सारे बिजनेसेस में? सॉफ्टवेयर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मेरा एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है और मैं ट्रैक करूं, और अगर मैं इस सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर भी इवन फर्दर स्पेशलाइज्ड हूँ, लेट्स से पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप बहुत अच्छे हो, या आप C++ के अंदर बहुत अच्छे हो, या आप राइस के अंदर बहुत अच्छे हो, या AWS क्लाउड के अंदर बहुत अच्छे हो, ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल अलर्ट्स सेटअप कर दिए डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे। ठीक है, मैं और दूसरा पहले वाले का भी लिंक खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैक कर सकते हो, आप अलर्ट सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप योर स्टोरी है, या पे जाके न्यूज के अंदर एक अलर्ट सेट कर दो कि फंडेड स्टार्टअप, तो आप रोज के एक अलर्ट आते रहेंगे कि ये कंपनीज ने आज फंडिंग रेस की है। मैं इसके बाद का स्टेप आपको जरूर बताऊंगा। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स, बिजनेसेस किसको टारगेट करना है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे अलर्ट सेट किया वेब डेवलपर, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेब डेवलपर के लिए हायर कर रही हैं, वेब डिजाइनर के लिए हायर कर रही हैं। आप इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, तो और समझ में आ जाएगा आपको कि ये कंपनी की क्या स्टेज चल रही है, किस टाइप के लोगों को ये हायर कर रहे हैं। तो आप अपने आप इनको रीच आउट करते हो, तो आप पर्सनलाइज कर सकते हो उस हिसाब से कि आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन और इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप के अलर्ट सेट करो हायरिंग कीवर्ड्स के लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि किस कंपनी में क्या हो रहा है। उसको यूज करके आप अपने आप को पिच कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो। थर्ड जो मैं ट्रैक करता हूँ और मुझे यूजफुल भी लगता है, वो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, या न्यू ऑफिस लॉन्चेस, या मार्केट एक्सपेंशन, या न्यू हायरिंग। तो जैसे मान लो कंपनी ने आज एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है, तो चांसेस बहुत है वो वेबसाइट करने के लिए या रन करने के लिए स्मूथली, या बग्स करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर कर सकते हैं। मतलब अगर 10 कंपनीज हैं जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं है, वर्सेस जिसमें से 2 है जिनका मुझे एटलीस्ट ये पता है कि यार इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एक ऐप है, तो मेरे के वहां पे चांसेस ज्यादा है मेरे। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे इंटेंस सिग्नल्स हैं जिनको आप डेफिनेट सोच सकते हो कि मेरे बिजनेस में क्या ऐसा ट्रिगर है जो यूजफुल है, और उस ट्रिगर को आप रिलीजियसली फॉलो करो और ट्रैक करो फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, एंड दैट बिकम्स अ न्यू वे ऑफ जनरेटिंग
हाईली पर्सनलाइज एंड हाई क्वालिटी बिजनेस लीड्स फॉर यू। तो ये मैं बोलता हूँ कि आपका फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द राइट कंपनीज टू टारगेट, विच यू कैन डू बाय understanding the intent of the company or stage at which they are at the moment, and use that stage to personalize and identify and target at the right time of the company। तो ये मेरा एक ऑप्शन और रिकमेंडेशन रहता है, स्पेशली टू द businesses who are competing in a very large pool of businesses offering the more or less the same services। होप मतलब इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला है। अगर आप में से ऑलरेडी कोई लोग ये यूज कर रहे हैं तो बहुत अमेजिंग है, अगर नहीं कर रहे तो ट्राई एंड सी इफ दैट वर्क्स फॉर यू। अब अगर मान लीजिए मैंने पहला स्टेप है कि मैंने अपने आप को एक बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से मैंने फंडिंग कंपनीज को ट्रैक कर लिया कि ये कंपनीज ने फंडिंग रेज की है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि मुझे उनको रीच आउट करना है। ठीक है, अब रीच आउट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है कि क्या वो कंपनी स्मॉल बिजनेस है, क्या वो मीडियम बिजनेस है, क्या वो लार्ज कंपनी है। मतलब मैं मान लो तीनों चारों ऑप्शंस जो इंटेंट सिग्नल्स मैंने बताए, हायरिंग हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, या आपका फंडिंग हो गया, आपने मान लीजिए सारे ऑप्शंस में से 50 कंपनीज निकाल ली कि ये मेरी 50 कंपनीज है जिनको मुझे टारगेट करना है। अब आप क्या करिए, हमेशा हम क्या गलती करते हैं ना कि सब टाइप की कंपनीज को सभी टाइप का सेम टाइप का मैसेज भेजते हैं या सेम टाइप के लोगों को टच बेस करते हैं। हमें क्या करना है, हमें उनको फर्दर सेगमेंट करना है। मान लीजिए 50 में से 10 कंपनी ऐसी थी जो लार्ज कंपनीज थी, लेट्स से 500 से ऊपर एम्प्लॉयज थे उनके। ठीक है, तो उनको अलग कर दीजिए। 20 कंपनीज ऐसी थी जो स्मॉल कंपनीज थी। ठीक है, उनको आप अलग आइडेंटिफाई कर लीजिए। और 20 कंपनीज ऐसी थी जो मिड साइज थी। स्मॉल मैं किसको बोल रहा हूँ, 1 से 50 या 1 से 100 एम्प्लॉयज। ठीक है, और बड़ी कंपनी 100 या 50 से 500 एम्प्लॉयज, मिड साइज हो गया। लार्ज हो गया 500 से ऊपर। ठीक है, रीजन इसका ये है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करना चाहिए ऐसे, ताकि आपकी जो पर्सनलाइजेशन है या अप्रोच है उनको टारगेट करने की, या टाइटल्स हैं मतलब किस लोगों को उसमें टारगेट करना है, वो डिफरेंट हो जाए। तो लेट्स से मेरा मैंने अपने कंपनीज को 50 को डिवाइड कर लिया, स्मॉल, मीडियम और हाई साइज कंपनीज में। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, पहला हम उठाते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। अब स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी फर्दर क्या हो जाता है, चैनल क्या यूज करें, अप्रोच क्या यूज करें इनको टारगेट करने की। ठीक है, तो तीन टाइप के अप्रोच हो गए। पहला हो गया कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज। ठीक है, दूसरा हो गया कोल्ड कॉलिंग, थर्ड हो गया सोशल सेलिंग। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ऑडियंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आप मेथड यूज कर सकते हो या मिक्स एंड मैच ट्राई कर सकते हो। लेट्स से एक बिजनेस है स्मॉल, ठीक है, और वो कन्वेंशनल बिजनेस है। कन्वेंशनल बिजनेस मतलब ज्यादा टेक सेवी नहीं है। ठीक है, तो वहां तो आप ऑब्जर्व करोगे कोल्ड कॉलिंग ज्यादा बेस्ट काम करती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो फोन पे लोगों की अवेलेबिलिटी होती है या उनका जो रिसेप्शन होता है वो फोन कॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है। अगर वो बिजनेस टेक के अंदर फॉल करता है, मतलब आईटी डोमेन सेक्टर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, रिटेल, थोड़ा सा इस टाइप के इंडस्ट्री के अंदर फॉल करता है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोल्ड ईमेल या लिंक्डइन के ऊपर मैसेज भी बहुत यूजफुल हो सकता है। प्लस ऑब्वियसली कपलिंग इट विद कोल्ड कॉलिंग ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट। बट यहाँ पे आप डेफिनेटली कोल्ड ईमेल एज वेल एज कोल्ड कॉलिंग, सॉरी सोशल सेलिंग या कोल्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे करके ना आपको एक, पहले आपको सेगमेंट करना है अपने बिजनेसेस को। दूसरा फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेगमेंट के अंदर किस टाइप की इंडस्ट्री है जिसको मैं डील कर रहा हूँ। उस इंडस्ट्री के बेसिस पे फिर आपको फर्दर चेक करना है कि क्या अप्रोच मुझे फॉलो करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस सबको ही कोल्ड ईमेल कर रहे हो, सबको ही कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो। कर लो आप, डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा सा सेगमेंट करोगे ना, तो आपको चांसेस है कि रिस्पॉन्स रेट और क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोसेस विल डेफिनेटली इम्प्रूव। तो लेट्स से अब हमारा एक स्मॉल बिजनेस था। स्मॉल बिजनेस के अंदर हमारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो हमने आइडेंटिफाई की। अब हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली जो होते हैं फाउंडर्स एंड सीईओज या डायरेक्टर्स ही होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, अब उनको आपको रीच आउट करना है तो आपको उनको ढूंढना पड़ेगा पहले। तो ढूंढने के क्या तरीके हैं, बेस्ट तरीका तो यही रहता है कि आप उनको एक, या तो आप उनको
आइडेंटिफाई कर लो लिंक्डइन के ऊपर जाके, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी है एनआरडी वेयर हाउसिंग, जिसने फंडिंग रेस की है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। हम इसको देखते हैं अभी। और दूसरी जो कंपनी है वो H3 मार्ट है। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, 11 to 50 एम्प्लॉय साइज। हम इसका H3 मार्ट, इसको ढूंढते हैं हम गूगल पे जाके। ये कंपनी है, लिंक्डइन पे अगर आप देखोगे तो मुझे फर्स्ट पेज ही मिल गया है इसका। इनफैक्ट हमारे को इनके फाउंडर भी मिल गए हैं, और एनआरडी का भी हमें लिंक्डइन पेज मिल जाएगा अभी। ये उनकी वेबसाइट है, ये उनका सोशल हैंडल है, विच मीन्स द कंपनी प्रोफाइल पेज। तो जब हम उनके लिंक्डइन पेज पे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो उनके एम्प्लॉयज हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम उनके एम्प्लॉयज खोलेंगे, और हम देखेंगे कि उनके फाउंडर्स कौन है। जैसे आई थिंक असीजा, इफ आई एम रॉन्ग दक्ष, आप शायद वेबिनार पे भी हो, क्योंकि समवन कमेंटेड। अच्छा, वो दक्ष भाटी है, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, आई गॉट कंफ्यूज कि शायद दक्ष नाम से किसी ने तो मुझे एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। सो दक्ष असीजा जो हैं वो हैं इनके को एनीवेज कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन, इसलिए मैं और थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर आप देखोगे तो अब इनको रीच आउट कैसे करें, उसके बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। एक, आप इनको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप मैसेज कर रहे हो तो आप ये देखो कि इन्होंने आज फंडिंग रेस की है, राइट। तो इनका मुझे मैसेज भी आया हुआ है जिसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली। आई विल रिप्लाई टू यू दक्ष आफ्टरवर्ड्स। बट लेट्स से मैं इनको लिख रहा हूँ, हाय दक्ष, congratulations on your recent fundraise. I noticed you are expanding your business, and you might be looking for a software agency to scale your web development efforts। बहुत छोटा सा मैसेज लिखना है। ज्यादा लोग क्या करते हैं ना कि इतना सब कुछ लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है, और लिंक्स भी भेज देते हैं, और उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो भी भेज देते हैं। आपको फर्स्ट टाइम पे ये सब कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम पे बस आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है। आपको बस एक बात बतानी है कि यार मैं ये करता हूँ, आपको जरूरत है तो बताओ, मैं आगे भेजूँ आपको डिटेल्स। डोंट सेंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट मैसेज और ईमेल, ठीक है। तो आपने ये मैसेज किया, सिंपल सी बात पूछ ली कि मैं ये करता हूँ, आपको क्या चाहिए बताऊं, मैं कुछ और भेजूं आपको। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो एक छोटी सी लाइन पढ़ के भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखोगे ना तो फर्स्ट लाइन थोड़ी सी एक मीनिंगफुल है, उसमें समझ में आता है कि आपने उनके बारे में रिसर्च की है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रीसेंट फंड रेज, मतलब टाइमिंग आप देखोगे तो इस टाइम पे टाइमिंग सेट हो रही है थोड़ी। सिमिलर वे में ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, दक्ष की ईमेल आईडी ढूंढ सकते हो, जिसको ढूंढने के बहुत सारे टूल्स हैं। हालांकि ये वेबिनार बहुत लंबा चला जा रहा है, अभी मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कम बात करूंगा, बट मुझे लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बट इसके ऊपर हम अलग से एक और वेबिनार करेंगे बाद में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इनकी ईमेल आईडीज ढूंढ सकते हो, हाउ यू कैन बिल्ड द ईमेल आईडीज ऑफ द रिस्पेक्टिव पीपल। बट जस्ट टू टच अपॉन, देर आर डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आप ईमेल आईडीज प्लान कर सकते हो। वन ऑफ देम इज hunter.io, the other one is mailbox layer, the other one is clearbit, ठीक है। और अगर आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है दक्ष को, मतलब आपने इनको मैसेज भेज दिया, सेम आपका इनका ईमेल आईडी ढूंढ के इनको आप ईमेल भी कर दो, जिसमें आप बहुत सिंपल सी छोटी सी मेल लिखो कि दक्ष, वी डू दिस, congratulations on your fundraise, I noticed that you may be expanding your business and scaling, so would you be looking for someone who can help you in your web development efforts। तो उसके नीचे आपने देखा, और आप फर्दर उसमें टूल्स यूज करो। जो टूल्स होते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्होंने मेल ओपन किया नहीं की। तो mailtrack.io is one of the good tools that can help you understand whether the prospect has opened your mail or not। जैसे ही वो मेल ओपन करते हैं, आप क्या करो,
अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आपको लग रहा है कि इनको आपको कॉल भी करनी चाहिए, तो you can use contact finder tools, various tools available. One of them obviously a lot of people you may be aware कि हमारा ही टूल है मिस्टरी, जो आप यूज कर सकते हो, जो आपको लिंक्डइन या ज़ोबाकॉप और क्रंचबेस पे भी काम करेगा। यू कैन गेट द कॉन्टैक्ट नंबर। अब जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोस्पेक्ट है, मैसेज किया पहले आपने लिंक्डइन पे, ईमेल भेजी फिर आपने, फिर नेक्स्ट स्टेप इज कॉल कॉल देम। कॉल करके आप उनको बोलो कि आई सेंट यू एन ईमेल, डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट दैट, and would you be interested in understanding how we can help you in scaling up your software development efforts at your organization? इतनी सी बात बोलनी है। उसके बाद let them tell you whether they are looking for it or not, but इससे आपका एटलीस्ट चांस बहुत बढ़ जाता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, a lot of businesses rely on the timing of the salesperson to reach out to them। क्योंकि पहले होता था, जब मैं लोगों को रीच आउट करता था, वो बोलते थे यार हमने अभी फाइनलाइज किया है, अगर आप थोड़ा पहले आते ना तो वी वुड हैव डिस्कस्ड। और वो थोड़ा पहले क्या होता है ना, टाइमिंग। तो टाइमिंग अगर आप थोड़ी सी अपनी बिजनेस की आउटरीच की एक स्ट्रीमलाइन कर लोगे, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू विल बी एबल टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करो। Process, identifying the right companies. Second process, identifying the right set of people based on the segments of the companies that they fall into. Identifying and finalizing approach, इस अप्रोच को फॉलो करना है। अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटरप्राइजेस की, अब अभी हमने स्मॉल की बात की जिसमें आइडियल कस्टमर्स हमारे हो जाते हैं फाउंडर्स और सीईओ। अब हम बात करते हैं लार्ज कंपनीज की। तो अगर आप देखोगे तो लार्ज कंपनीज में थोड़ा टफ हो जाता है रीच आउट करना और आइडेंटिफाई करना। उसमें आप फाउंडर्स एंड सीईओ को नहीं रीच आउट कर सकते। उसमें दी आइडियल कस्टमर्स इज डिपार्टमेंट हेड और मैनेजर लेवल पीपल इन द आईटी डिपार्टमेंट। आप उनको रीच आउट करो। उनको रीच आउट करने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पे पहले मैसेज किया, फिर आपने उनको ईमेल भेजी, फिर आपने उनको कॉल की। ये तीनों चैनल्स आप यूज कर सकते हो to target them with a hyper, multi-channel targeting approach. You can personalize your pitch and personalize your efforts, और आपके chances definitely improve होंगे for conversion of sales. तो अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो do let me know. I'll be happy to answer. The people who are present on Hangouts can pour in their question, as well as the people who are listening to this webinar on LinkedIn. आपको भी कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट ऑन योर चैनल, सॉरी द वीडियो दैट यू आर वाचिंग, उस पे आप पूछिए और मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई एम सॉरी, सचिन इज आस्किंग विच टूल यू जस्ट सजेस्ट सर। सो सचिन, आप आई डोंट नो किस पर्टिकुलर, मैंने काफी सारे टूल्स के नाम लिए थे, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला टूल जो हमने बोला था, वो बोला था कि आप ईमेल आईडीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लियर बिट है, मेल बॉक्स लेयर है, और hunter.io है। ये तीन टूल आप यूज कर सकते हो। दूसरा टूल जो हमने प्लान किया था, मैंने बोला था कि आप कांटेक्ट नंबर्स के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो वो है मिस्टर ई टूल। मिस्टर ई बाय इजी लीड्स आप गूगल करोगे तो वो हमारा टूल है, विच गिव्स यू द मोबाइल नंबर्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स डायरेक्टली विदाउट एनी एफर्ट। सिंगल क्लिक में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। तीसरा हमने बात किया था कि आप ईमेल ट्रैकिंग के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हो। वो आप यूज कर सकते हो mailtrack.io, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि इस सामने वाले बंदे ने मेल ओपन किया है या नहीं किया है। Nitin Gupta is asking, so Reena Bandre, the tool that you can use for contact number finder is Mr. E। आप easy leads पे जाएंगे, easyleads.com, या आप गूगल कर लेंगे सिंपल मिस्टर ई, तो आपको वो टूल का लिंक मिल जाएगा और फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। आप कर लीजिए प्लीज। नितिन गुप्ता इज आस्किंग, when we get the number and call someone, they ask where we have taken the number from. When we tell them that we used to do,
ऑफ कोर्स मतलब कोई भी ऐसे थोड़ा सा इनका क्वेश्चन है कि जब हम किसी का नंबर लेते हैं ऐसे किसी टूल से तो लोग ऑब्वियसली बोलते हैं कि आपने कहाँ से नंबर लिया। तो उसमें देखिए थोड़ा सा अप्रोच ये रहता है, सेल्स वाले का स्किल सेट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। हालांकि नंबर किसी टूल से लेना इलीगल नहीं है, ये प्राइवेसी वॉयलेशन नहीं होता, बिकॉज जो भी टूल्स ऐसे इस बिजनेस में हैं वो ज्यादातर नंबर्स पब्लिक फोरम से निकाल के ही देते हैं। मतलब हम भी इवन वही नंबर्स देते हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। हम ऐसे हैक करके नंबर्स नहीं निकाल के लाते कहीं से जो कहीं ने लिखे ही नहीं है किसी ने कहीं पे। तो डेफिनेटली आप फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट यू कैन ऑलवेज मेंशन, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऑब्वियसली फ्रॉम अ रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट आप सिंपल बोल सकते हैं कि समवन गेव मी द नंबर ऑन लिंक्डइन फॉर यू। उन्होंने बोला, आपके फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड्स है हमारे, मैंने उनसे नंबर लिया आपका। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं आपको रीच आउट करूं, तो वो थोड़ा सा पर्सनल टच लगता है। वो आप पर्सनल टच आप यूज करिए रादर देन ओपनली सेइंग कि मुझे टूल से नंबर मिला है। हालांकि आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, वो भी कोई इसमें गलत नहीं है, बट स्टिल इट ऑलवेज गुड फॉर यू टू से एंड पर्सनलाइज एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। कुछ क्वेश्चंस में देख। यस। या निशांत। हम्म। तो आप अगर देखोगे ना तो मैंने या सो अगर आप देखोगे, मैं गूगल पे गया, ये गूगल की स्क्रीन है इस टाइम पे। मैंने सर्च किया वेब डेवलपर जॉब्स, यहीं पे नीचे आपको एक बटन दिखेगा, न्यू जॉब। तो अब आपको, जब आप इसको अनेबल कर दोगे ना, आपको अलर्ट्स आते रहेंगे इस टाइप के कीवर्ड्स की जॉब्स के रोल्स, ये ऑटोमेटिक आते हैं। आप मैंने यहाँ पे सर्च जो किया वेब डेवलपर का, मुझे इस वेब डेवलपर के भी जो भी नई जॉब्स आएंगी उसके अलर्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके मल्टीपल अलर्ट्स भी सेट कर सकता हूँ, और मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि डेली आए, इंस्टेंटली आए, या वीकली अलर्ट्स आए। जी। आई होप इट्स क्लियर। या ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो हम लिंक्डइन से उठाते हैं। इन द मीन टाइम जो हैंगआउट्स पे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज डू, आप शेयर कर सकते हैं। डू यू थिंक जॉब रिक्रूटर शुड मेंशन सीटीसी इन द जॉब डिस्क्रिप्शन? Anurag, I don't know how this question resonates with the webinar that we had. फिर किसी दिन अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन दैट डायरेक्शन और टॉक अबाउट दैट। आशुतोष पांडे फ्रॉम सोशल फाइम is asking, we are into AI based influencer marketing platform, how do we get brands? सो मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये सेम अप्रोच में काफी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आपके लिए तो और भी अमेजिंग है, ये काम करता है। जैसे रिसेंटली फंडेड कंपनीज हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू डू, स्पेशली बी टू सी और डी टू सी ब्रांड्स जो होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आप देखोगे तो अगर किसी कंपनी ने फंडिंग की है तो 15-20% ऑफ देयर फंडिंग बजट गोज इनटू मार्केटिंग मिनिमम, उससे ज्यादा भी होता है इनफैक्ट। तो आप तो सिंपल है, आप तो उनको मतलब उस टाइम पे रीच आउट करो और बोलो कि आप मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंसिडर कर रहे हो क्या? इफ यस, देन वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हेल्प यू। हमने सिमिलर कंपनीज इस स्पेस में ये कंपनीज को हेल्प किया है इन जनरेटिंग हाई क्वालिटी कंज्यूमर एक्विजिशन चैनल फॉर देम। मतलब जैसे आप केस स्टडीज भी बता सकते हो उनको कि मेरे 4 कंपनीज आपके स्पेस में है जिनको हमने हेल्प किया है, तो आप देखना चाहोगे हमने उनको कैसे हेल्प किया है। तो सिंस उनका इस टाइम पे टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, आपको डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको उसमें एंगेजमेंट मिलेगा और एटलीस्ट बात तो सुनेंगे वो आपकी। सेम आप जॉब कीवर्ड्स ट्रैक कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर, जो जो कंपनी उस टाइप के लोगों को हायर कर रही है, वहां तो डेफिनेटली स्कोप है आपका। दूसरा क्वेश्चन है प्रांजलि जवर का, हाउ टू फाइंड डिसीजन मेकर्स ऑन लिंक्डइन। तो प्रांजलि, मतलब जैसे मैंने आपको एक दिखाए थे कि कंपनीज हैं, अगर मैं जाऊंगा नॉर्मल, मेरे पास नेविगेटर भी नहीं है। जैसे ये कंपनी है, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। अब मैं इस कंपनी के पेज पे गया, मैंने देखे ये बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं इनके,
यहीं पे मुझे दिख जाएगा कि इनके कौन कौन से डिसीजन मेकर्स हैं। आप इसके बाद फर्दर फिल्टर्स भी लगा सकते हो। फर्दर फिल्टर्स में आप टाइटल डिफाइन कर सकते हो, सीईओ डाल लो, फाउंडर डाल लो, या आईटी हेड डाल लो। जो आपको डिसीजन मेकर आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लग रहा है। अगर छोटी कंपनी है तो 1 to 50 साइज, जैसे मैंने बताया, फाउंडर सीईओ यूजुअली। मिड साइज है तो आईटी के थोड़े से लोग आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे, डेडिकेटेड। हाई है तो आईटी मैनेजर। तो उस टाइप के डिसीजन मेकर आप आइडेंटिफाई करो बेस्ड ऑन द बिजनेस दैट यू आर इन। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। ये क्वेश्चन है नितिन येंडे, एमडी, लीडर स्टैंड बाय रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट पर्सनल टच। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, आप शायद बताना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। Anyone else who have a question from LinkedIn, please, you can post it. Hi Reena. हम्म। ग्रुप से में क्या होता है कि आप ट्रैक करते हो कि डिस्कशन हो रही है। नॉर्मली फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन यहाँ पे काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे मैं ग्रुप पे गया, ये मेरा एक ग्रुप है जिसको, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इनफैक्ट। अभी आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टार्टअप्स के ग्रुप बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर आप स्टार्टअप सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हो तो आप स्टार्टअप ग्रुप ज्वाइन करके ये देख सकते हो कि कौन क्या चैटर कर रहा है। इसमें सोशल लिसनिंग टूल्स भी बहुत सारे आते हैं जिसके हम बाद में एक और वेबिनार करेंगे। तो मान लीजिए आपने किया वेब डेवलपर, देखिए कि कौन से लोग वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उस ग्रुप में। फिर आप उसको फर्दर रीच आउट करिए और बोलिए कि आई नोटिस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपर, आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू इन योर वेब डेवलपमेंट बिजनेस। तो इस तरीके से आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपनी अप्रोच बाय ट्रैकिंग द राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स इन द ग्रुप। सो देखिए, ग्रुप के अंदर ट्रैकिंग का अभी तक लिंक्डइन ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है, उसमें अलर्ट्स नहीं आते हैं आपको। बट इसके अंदर ना एक सेपरेट एक वो है, मतलब तरीका है उसको करने का, वो है सोशल लिसनिंग। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं अभी लिंक्डइन के अंदर, बट आप पोस्ट जरूर, आपको अलर्ट आ सकता है। जैसे आपने मान लीजिए ग्रुप ज्वाइन किया, ये वाला सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो कि मुझे सारी पोस्ट का अलर्ट आए। तो जो जो लोग इसके अंदर पोस्ट कर रहे हैं आपको अलर्ट आता रहेगा। फिर आप उसके अंदर देख लीजिए कि क्या वो पोस्ट आपके काम की है या नहीं है। अगर काम की है तो फिर उसमें जो जो लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो पढ़ के आप उनको रीच आउट कर सकते हो। या ऑलराइट, Sachin Jaiswal is asking and Gautam is asking, can you get contact number outside India? Yes, Sachin and Gautam, आप डेफिनेटली टूल को यूज कर सकते हो मिस्टर ई को आउटसाइड इंडिया के कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए भी। Arun Anand, how to tackle organizations which where there are more than one person is involved in decision making? वो definitely होगा, especially as you mentioned large organization में तो ये रहता ही है। तो देखिए उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि आप मल्टीपल डिसीजन मेकर्स को पैरेलली में रीच आउट कर सकते हो, मतलब दो या तीन को रीच आउट कर सकते हो। और जब भी, अब सेल्स वाले का काम क्या होता है, आपने किसी को रीच आउट किया, उन्होंने आपसे बात शुरू की, तो आप उनसे उसी टाइम पूछ सकते हो नॉर्मली कि आर यू द वन हु इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द इंटायर डिसीजन मेकर, समवन एल्स। तो वो नॉर्मली खुद भी बता देते हैं कि हमारे साथ एक वीपी भी होंगे। तो आप उनको बोल सकते हो, डू यू वांट टू इन्वॉल्व हिम राइट एट दिस मोमेंट, और would he be, he or she would be associating or getting involved in this discussion afterwards। तो ये आप नॉर्मली पूछ सकते हो, इसमें कुछ हर्ज नहीं है पूछने में कि क्या आप डिसीजन मेकर हो, बट ऑब्वियसली आपकी टोन और पिच थोड़ी सी उस पॉजिटिविटी में होनी चाहिए। मेक पोला अभिजीत कुमार पूछ रहे हैं कि मेकिंग कोल्ड अप्रोचेस बाय ईमेल और कोल्ड कॉल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन फैक्ट्री मैनेजिंग प्रोफेशनल्स, हाउ फार इट वर्क्स डू यू थिंक। तो नॉर्मली अभिजीत, मेरा सबको यही रहता है, जो मुझसे पूछता है ना कि कितनी परसेंटेज आउटपुट आएगी, तो मैं बोलता हूँ यार ये आंसर ना आपसे बेस्ट कोई नहीं दे सकता। रीजन बीइंग, आपको पता है कि आपका बिजनेस क्या है,
किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर इतना दम होता है या सर्विस के अंदर इतना अच्छा पोटेंशियल होता है कि वो जितनों को भी रीच आउट करते हैं ना, उनके सबसे एक लीड जनरेट हो जाती है। किसी किसी बिजनेस के अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है कि 100 में से 2 ही लोग रिप्लाई करते हैं या 100 में से 2 ही लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा, क्या आपकी अप्रोच है, किस टाइप से आपने कंटेंट उनको मैसेज किया है या कैसे आप बात कर रहे हो उनसे फोन पे। काफी चीजों में फैक्टर फर्क पड़ता है। बट बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप जब आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो या कोल्ड कॉल कर रहे हो तो नॉर्मली क्या करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ए बी टेस्टिंग बोलते हैं ना, जैसे 50 लोगों को आपने कोल्ड ईमेल भेजा वर्सेस 50 लोगों को आपने कॉल किया। तो आपने देखा, एक्सेल शीट यूज करो सिंपल, एक्सेल तो सबको ही आती है, तो एक्सेल यूज करो, उसमें आप लिखो कि कोल्ड ईमेल में कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, कोल्ड कॉलिंग में कितने लोगों ने आपसे बात की, क्या क्या बात की, कितने, क्या आउटपुट निकला। तो परसेंटेज वाइज आप दोनों में ट्रैक करो और फिर बेसिस ऑन दैट फिर आप स्केल करो कि मेरे को रेस्ट जो 100 डालने हैं एफर्ट्स, वो मैं कोल्ड कॉलिंग में डालूं या कोल्ड ईमेलिंग में डालूं ज्यादा। Sachin Jaiswal is asking, sir, I have asked many times in my company to buy EasyLead subscription, but they always want to save money and says it's bit costly. But they don't know how much it's going to help in lead gen. सी सचिन, अब ये तो देखो पर्सपेक्टिव है। अब किसी को 10 रुपीज स्पेंड करना बहुत मुश्किल वो लगता है, कॉस्टली लगता है, और किसी के लिए 100 रुपीज भी बहुत नॉर्मल लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। अगर आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है, 1-2 रुपए है, तो ऑब्वियसली आपको कॉस्टली लगेगा। अगर आपका कस्टमर एक्विजिशन 100 है, 100 है, क्योंकि मूवी में बहुत ही कम है, मतलब 10,000 तक चला जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नॉर्मल है, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं मतलब महंगा लगेगा हमारा टूल। और नॉर्मली मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, खुद मैंने ये गलती की है कि हम लोग क्या करते हैं ना, पैसा बचाने की बहुत फोकस करते हैं, टाइम बचाने पे कोई एफर्ट नहीं होता। आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, टाइम नहीं कमा सकते। तो फोकस ऑन सेविंग योर टाइम देन मनी। जो आप टाइम बचा रहे हो ना, उसमें आप 10 गुना ज्यादा एफर्ट मार के और पैसा कमा सकते हो रादर देन सेविंग मनी। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहता है। मैंने खुद बहुत ये गलतियां की है। हम टूल्स के सब्सक्रिप्शन नहीं लेते थे, मल्टीपल आईडीज बना बना के फ्री निकालने की कोशिश करते थे। उतना ही आप एफर्ट मार रहे हो यार, वेस्ट कर रहे हो। उससे बढ़िया 2 लोगों से बात कर लो जो आपको हो सकता है 10,000 रुपए का एक बिजनेस दे देंगे। वो टूल की कॉस्ट वैसे ही निकल आएगी। तो थोड़ा उस तरीके से सोचो। गौतम पूछ रहे हैं, हाउ टू फाइंड द रिक्वायरमेंट्स, एग्जांपल इफ आई वांट टू टारगेट कंपनीज व्हिच लुक फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हाउ कैन आई डू दैट। तो गौतम, ये पूरा का पूरा वेबिनार एक्चुअली उसी के ऊपर ही था। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको देखना है तो कौन कौन लोग नॉर्मली स्पेंड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बिजनेसेस। पहला तो मैंने बोला फंडिंग कंपनीज जो हुई हैं जिनकी, वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करेंगे। अगर आप देखोगे ओवर द लास्ट 2 इयर्स, डिजिटल मार्केटिंग का स्पेंड हैज गॉन अप टू 30%। प्रिंट मीडिया का जो स्पेंड होता था वो इतना हाई हुआ करता था। आज की डेट में ओवरऑल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में डिजिटल डिजिटल 30% पे आ गया है, विच हैज ओवरटेकन प्रिंट। तो मतलब स्कोप तो बहुत है और ये बढ़ ही रहा है। तो ऑब्वियसली मोस्टली सारी कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, बट टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो जैसे मैंने बोला, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टारगेट करो फंडेड कंपनीज को, प्लस ट्रैक करो गूगल पे किस किस कंपनी ने आज की डेट में हायरिंग की है या हायरिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लोगों के लिए। और आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू एप्स, इस टाइप की चीजों को देखो। सो अभिजीत, आपने शायद फॉलो अप क्वेश्चन भेजा है। वी ऑफर कंस्ट्रक्शन टेक सर्विसेज एंड फैक्ट्री डिजिटाइजिंग सॉल्यूशंस। तो अगर आप देखोगे ना, फैक्ट्रीज डिजिटाइजिंग सॉल्यूशंस में नॉर्मली जो आपके डिसीजन मेकर्स होने वाले हैं वो बड़े लोग ही होने वाले हैं, खासकर जो कन्वेंशनल बिजनेसेस के अंदर है। क्योंकि आप डिजिटाइजेशन कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि वो सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, उनको आप डिजिटाइज कर रहे हो अभी। तो उसमें तो आपका फोन कॉल ज्यादा अच्छा काम करता है, कोल्ड कॉल ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो लोग ईमेल वगैरह पे नहीं होते हैं मोस्टली अवेलेबल। तो वहां तो मेरे को लगता है कि कोल्ड कॉलिंग विल ऑलवेज बी गुड, कंबाइनिंग विद कि आप किस तरीके से उनको रीच आउट कर रहे हो। सीईओज डायरेक्टर्स ही यूजुअली डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो उनको अगर आप कोल्ड कॉल करोगे
एंड यू मेंशन व्हाट यू हैव डन फॉर अदर फैक्ट्रीज इन देयर इंडस्ट्री, कि आपने उनकी फैक्ट्री सिमिलर इंडस्ट्री में 4 फैक्ट्रीज को डिजिटाइज किया और उनका रेवेन्यू 2 करोड़ बढ़ गया। सारों को रेवेन्यू चाहिए। अगर आप बता रहे हो कि उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है या मैं बढ़ा सकता हूँ उनका रेवेन्यू, तो डेफिनेटली पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन एटलीस्ट। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब लिंक्डइन पे देखते हैं और किस किसने क्वेश्चंस पूछे हैं। श्वेता सरोदे इज आस्किंग, आई कुड नॉट एबल टू अटेंड दिस मीटिंग, कैन यू प्लीज गेट मी द वीडियो। यस श्वेता, आप कभी भी पूरा वीडियो लाइव देखना चाहें तो देख सकते हैं। मतलब हम लोग मेल भी कर देंगे बाद में, बट आपको लिंक्डइन पे तो मिलेगी वीडियो हमेशा, और ये हमारे ब्लॉग पे भी आ जाएगा और न्यूज़लेटर में भी जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अबाउट द ओवरऑल वेबिनार दैट वी हैव डन, या किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो। 1-2 मिनट और हम रहेंगे इस पे, एंड उसके बाद वी विल call off and close this webinar. Already we are way past 45 minutes. किसी को कुछ स्पेसिफिक टू अपने बिजनेस के बारे में पूछना है कि इस मेरा ये बिजनेस है, कोई बताना चाहता है कि आपका क्या बिजनेस है ओवर दी हैंगआउट्स और ओवर दी कमेंट्स इन लिंक्डइन, तो आप जरूर बता सकते हैं। और उसमें अगर मैं कुछ आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट, कुछ बता सकता हूँ, टिप्स दे सकता हूँ, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। हाय हिमांशु। जी जी। राइट राइट। जी। नहीं आ सकता। हम्म। राइट राइट। हम्म। राइट, सी देखिए, जब आप ऑटोमेशन करते हो ना, तो ऑटोमेशन करने से पहले का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मैनुअली क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पता है कि यार ये चीज, ये प्रोसेस मेरे को मैनुअली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, फिर आप उसको ऑटोमेट करने के ऊपर फोकस करो। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला कि यार मैं ट्रैक करता हूँ पोस्ट, ठीक है, सर्टेन कीवर्ड्स हैशटैग को मैं ट्रैक करता हूँ लिंक्डइन पे, और उसके थ्रू मेरे को आउटपुट अच्छा मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, पहली बात तो कोई भी सिंगल टूल आपको 100% चीजें जो आप करना चाहते हैं वो कोई नहीं दे सकता। मतलब ऐसा कुछ टूल बना नहीं, क्योंकि वो तो आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल 3-4 टूल्स यूज करो। जैसे मान लीजिए फैंटम बस्टर आपने यूज किया, या सोशल लिसनिंग के टूल्स आते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल इज mention.io। ठीक है, mention.io से आप ट्रैक कर लो कीवर्ड्स सोशल लिसनिंग यूज करके, कि कौन क्या क्या कीवर्ड्स बोल रहा है लिंक्डइन पे। उसके ऊपर हम एक और वेबिनार करेंगे बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीक। बट आप मान लीजिए ट्रैक कर रहे हैं कि किसने हैशटैग वेब डेवलपर यूज किया, या हैशटैग लुकिंग फॉर वेब डेवलपर यूज किया, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और भी कीवर्ड्स होंगे बहुत सारे। अब वो आपको पोस्ट दे देगा कि यहाँ यहाँ पे ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोस्ट में कौन कौन किसने क्या क्या मेंशन किया है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब आपने mention.io से आपने ट्रैक्स कर लिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपको टाइमली अलर्ट्स आ जाए कि इस बंदे ने यहाँ पे ये बात की है, ठीक है। वो आप जेपियर के थ्रू या मेंशन के थ्रू ही एपीआई यूज कर सकते हो, और आप स्लैक पे अपने, या हैंगआउट्स पे, या व्हाट्सएप पे अलर्ट्स ले सकते हो कि इस बंदे ने ये बात की है, ठीक है। तो आपका ये स्टेप सर्च करना टू वाला हो गया। अब स्टेप आ जाता है कि अब इनको रीच आउट कैसे करना है। अब मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया एपीआई के थ्रू कि नितिन बजाज ने ये पोस्ट किया है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि नितिन बजाज का ईमेल आईडी मिल जाए या उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, तो उसके लिए ऑब्वियसली देन यूज मल्टीपल एपीआई। जैसे हमारी एपीआई है,
आपने इनपुट में लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल पास की, बंदे की रिटर्न में कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो आपको एपीआई के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, वो मैनुअल काम खत्म हो गया। सेम आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो ईमेल आपको दे देंगे एपीआई के थ्रू। ठीक है, जेपियर बहुत फंक्शन करता है इसके अंदर। अब आपने एक और फर्दर यूज किया ऑटोमेशन, जहाँ पे आपने ऑटोमेट कर दिया कोल्ड ईमेल सेंड करना। ठीक है, तो आपको जैसी ईमेल आईडी मिली, आपने ट्रिगर किया कि जब कोई ईमेल आईडी इस एक्सेल के अंदर ऐड होती है, ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज भेज देना मेरी आईडी से। हमने खुद पूरे के पूरे प्रोसेसेस ऑटोमेट किए हुए हैं ये वाले। तो आपने वो सेंड कर दिया उसको, तो आपका आइडेंटिफाइंग टू सेंडिंग कोल्ड and sending cold contact number is overall automated, but this only can be done if you already know कि मैनुअल में क्या क्या आपने चाहिए आपको, तो उसी को आप ऑटोमेट कर दो। थैंक यू हिमांशु। रीना इज आस्किंग कैन यू, इट्स कॉल्ड फैंटम बस्टर। जी, दिस इज द टूल। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यम बहादुर इज आस्किंग हाउ टू फाइंड रेलेवेंट हैशटैग्स on LinkedIn. Is there any tool to automatically scrape it? So, Yum, there are a lot of tools actually. You can use mention.io. जो मैं बता रहा था, mention.io is really good tool to track keywords and hashtag and gives you automated results and notification for that. I hope this helps you. Anyways, I think more or less we are almost on the verge of closure of this web. किसी को बोलना है आपको ये सेशंस कितने हेल्पफुल लग रहे हैं, बट अगर सीरियसली वे हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज अभी बता दो मुझे, सो दैट आई कैन कीप ऑन डूइंग द सेम। और किसी को लगता है कि कोई टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे से अगला वेबिनार लेना चाहिए, तो लिंक्डइन पे जो सुन रहे हैं और जो हैंगआउट्स पे, प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड थॉट्स। वी विल ट्राई एंड डू द वेबिनार ऑन द टॉपिक्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर। या है काशिफ। राइट। डेफिनेटली, इनफैक्ट लास्ट टाइम पे मैंने बहुत डिटेल में फैंटम बस्टर के ऊपर बात की थी, but as you said, people are always more interested in how to actionable webinars। तो मेरा कोशिश वही रहता है कि मैं actionable ज्यादा बनाऊं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जो फोकस्ड होता है बहुत शेयर करके स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं, बट मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर करके स्क्रीन आपको वन टू वन दिखाऊं कि एक्चुअली में कैसे ट्रैकिंग कर सकते हो आप। So yes, very good request, and I am definitely going to, add on more of how to an actionable driven of webinars. Yeah. Sachin, are you associated or partnered with any job boards in India to fetch? Nahi, no, Sachin, we are not partnered with any job boards to find contact numbers. We have our own algorithm. Daksh Bhatia is asking, can I have a recording of your last session? दक्ष, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, आपको वहां मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। पुरानी पोस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी पिछले वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग। और हम आगे की तो भेजेंगे, आपको ईमेल करेंगे ही, और अपने ब्लॉग पे भी डालेंगे और न्यूज़लेटर में भी डालेंगे। ओके, रायन मैकेन इज सेइंग हाय। हाय रायन। Anyways, chalo, thank you everyone for joining in the webinar, both on Hangouts as well as LinkedIn Live. I hope I have done some justice to your time. और आगे के वेबिनार्स के लिए जब भी मैं प्लीज पोस्ट करूंगा तो डेफिनेटली कीप जॉइनिंग, दिस ऑलवेज हेल्प्स। एंड once this is over, we are going to send this recording over email to people who have joined or registered for the webinar, and you can always rewatch it in my LinkedIn wall। मेरी पोस्ट में आपको पुरानी सारी वीडियोस दिख जाएंगी, जो भी वेबिनार्स हमने किए हैं, जो भी पॉडकास्ट में करता हूँ वो भी आपको दिखेंगे। So thank you so much for joining, and wish you happy selling. Thank you.